An ordinary job, an ordinary office, an ordinary salary, but an extraordinary life. This podcast is a scan of Gurudev's office and work life. The workplace. The first crop of Gurudev's disciples came from his workplace. They were part of the genesis of his spiritual practices. In the early years, he would travel on a bicycle from work to a neighboring devotee's house to do SEVA during his lunch break. Later on, his ride was a scooter. His office yielded several disciples, allowed him to meet many in need, while his official camps became training grounds for his younger spiritual recruits. His productivity ratio on SEVA was unbelievably high. K.L. Nagpal, a future devotee, was the first co-worker Gurudev befriended at work. Dwarkanath ji, who was their landlord and roommate at Paharganj in Delhi, shares an interesting story of how Nagpal ji got the job. आप क्या कह रहे थे कि कुंदन लाल नागपाल जी का नाम था के.एल. नागपाल. के.एल. नागपाल क्या था? के.एल. नागपाल भी कैंडिडेट था और एक कुंदन लाल नागपाल भी कैंडिडेट था जिसकी सिफारिश थी. तो गलती से पहला नाम के.एल. नागपाल का था, उसको तो जॉब उन्होंने कुंदन लाल नागपाल समझ के उसको जॉब दे दी. उसको जॉब इनके पास वो आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ज्वाइन कर लिया. हफ्ते बाद उन्होंने देखा कि यार मेरे लड़के की तो ज्वाइन कर लिया. जब उसको सामने लाए तो कहते हैं ये तो मेरा लड़का ही. ऐसे लगी नौकरी by error, by mistake. तो वो उसका फादर एक नागपाल जी को मतलब आशीर्वाद दिया कि तू ज्यादा नीडी था इसलिए तेरा लग गया, मेरे चलो बाद में लग जाए. और ये मुकद्दर था गुरुदेव से मिलने का. Nagpal ji was multiple personalities rolled into one. He provided Gurudev with a lot of relief at work and allowed him extra time for SEVA. His opinions of Gurudev's office life are coming up. Nagpal ji, this brings me to a very good question. Was there any bureaucratic problems you had in doing this work? वो कभी किसी आदमी से. Otherwise, everybody used to say, okay, whatever you're doing is all. क्योंकि it was their up to their satisfaction. तो उनको काम से मतलब है, काम सही हो रहा है. जब काम सही हो रहा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. Gurudev would pick up Nagpal ji, who lived in the neighborhood, every morning at 7. Nagpal ji was often late. What Gurudev said to him in humor was, "So many people wait for me and here you are making me wait for you." Later, when Nagpal ji got into the justification gambit about how he had to do additional work for Gurudev, he got a good one as a rejoinder. Gurudev said, "I serve others and you serve me. Doesn't that make you greater than me?" And this was very common banter between the two. Nagpal ji recalls, मुझे आज रोना आता है, नोट करने की बात है विषय. मुझे आज रोना आता है. कभी कहते नागे, अब जैसे वो सुबह उन्होंने कहा आज सुबह 7 बजे चलना है, मैं थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया तो घर से आके मेरे को पिकअप करके लिए. तो मैं तैयार था चलने वाला, अटैची मेरे हाथ में ब्रीफ के चलने के लिए. तो फिर बैठते हुए कहते थे और ना गया लोग मैं चलू लेना था. अच्छा, एक तो ये चीज, दूसरी चीज हो, मैं वही कहता हूँ रोना आता है कि वो बात. ऑफिस में लोग छोड़ते नहीं, घर में छोड़ते हैं, टाइम है नहीं, पूरे वाउचर सबमिट करने हैं. क्या गुरु जी आप सारा काम जो है मेरे को, आप तो कुछ करते नहीं, सीधे घूमते रहते हो. कहते मेरी बात सुन, मैं लोगों का काम करता है ना, लोगों का थोड़ा फायदा होता है, और तू मेरा काम कर रहे हैं, बस कौन बताया. the one time Nagpal ji did a katti with Gurudev and sulked was when his child was born. The incident is recounted by Gurudev's eldest son, Pravesh Chanan, called Babba.
नागपाल अंकल गुरु जी के साथ तो ऐसे फ्रेंड कितने साल ऐसे ही रहे हैं, बाद में धीरे धीरे वो रिश्ता जो है बदल के चेंज हो गया। तो ये क्योंकि हर रोज गुरु जी के साथ ही जाया करते थे ऑफिस, वापसी अपने आप होती थी। इन्होंने उनको गुरु जी को बोला भी ऐसा है कि मुझे बेटा चाहिए, बोले तेरे को बेटा मिल गया। गुरु जी पक्की बात बोलना, ऐसा ना हो मेरी बेइज्जती हो जाए और मेरे को बहुत नाराजगी भी होगी अगर मेरा बेटा नहीं हुआ। अगर नहीं हो सकता तो मुझे अभी मना कर। मेरा बेटा हो गया तेरा बेटा, तो चिंता मत कर। इन्होंने फिर बीच में बात लंबा हो गया, हाँ भाई आंटी प्रेग्नेंट हो गए, क्या गुरु जी बेटा हो जाएगा? हाँ जी बेटा हो जाएगा। अब हुआ ये कि एक दिन ये गुरु जी के पास कमरे में आए होंगे, वहाँ पे सुरेंद्र तनेजा अंकल और ये सब लोग बैठे हुए थे। हो सकता है इन्होंने ऐसी ही कोई बात बोली हो कि गुरु जी देख लो कहीं ऐसा ना हो कि बेटी हो जाए, मुझे बेटा चाहिए। कहते तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरा तो बेटा ही है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जा और तू घर जा अपने। ये हो सकता है डिलीवरी में जाने लगे होंगे, गॉड नोस क्या था। तो जब ये चले गए तो पीछे से सुरेंद्र तनेजा अंकल को हंसते हुए जैसे बोलते हैं ना, ऐसे कुड़ी आ रही है। सुरेंद्र तनेजा अंकल गुरु जी की तरफ देखने लगे। गुरु जी आपने तो बड़ा उनको ये प्रॉमिस कर दिया कि भाई हाँ मैं तू चिंता मत कर, तेरे जो है मैं बेटा ही दे रहा हूँ। वो तो आपसे नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर सुरेंद्र तनेजा अंकल को बोला कि तो बेटा मैं इसको बेटी इसलिए दे रहा हूँ कि उस टाइम इनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी शायद। ये मुझे उनकी बात सुनने के बाद ही मुझे 2-3 साल पहले ये बात पता चली थी। तो कहते हैं बेटा इसकी लाइफ अभी नहीं है, तो लाइफ इसकी जो है वो 4th डॉटर है। इसका जो जैसे देना करना होता है, जो भी उनका हिसाब किताब होगा, तो ये जब तक इसकी शादी और ये पूरा सुखी नहीं हो जाती, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो सुरेंद्र अंकल ने उसके बात सुन ली और तो फिर गुरुजी ने सुरेंद्र तनेजा अंकल को वहां पर लिया, या उन्होंने इनसे बात की होगी या साथ में 1-2 लोग और गए होंगे। खैर मान तो अंकल ने जाना ही था, उनको शायद पूरी बात नहीं भी पता थी क्योंकि अंकल का 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है। तो इनको हार्ट अटैक भी हुआ और ये वहां भी गए। तो कहते कि जब तक उसका देना पूरा नहीं होता, ये गुरुजी ने सुरेंद्र तनेजा जी को बोला। What was interesting about this incident was that very often Gurudev had to manipulate destiny by playing cards which were not a part of the pack. And this was one such card. He made sure that Nagpalji had another daughter amongst the many he already had, to ensure that his life could be extended on that pretext. Because Nagpalji was a great lieutenant to Gurudev during his office camps, Gurudev was obliged and obligated to him. Anand Parashar, who was a junior in Gurudev's team, remembers the years gone by. If he had been a shyer and I had asked him to rewind to the memories stuck in his head, he would have probably recited the nazam that follows. तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं। तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं। नगमे जो खो गए हैं, उन्हें कहां से लाएं, उन्हें कहां से लाएं। मुझे ये समझ में इतना आ रहा है कि उनका जो मैंने अनुभव किया, सेवा भाव उनमें इतना था कि शायद ही कहीं किसी में देखने को नहीं मिलेगा। उनमें कभी गुस्सा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, गुरु जी को गुस्सा करते हुए। और वो जब भी उनको समय मिलता था वो अपना मेडिटेशन में लीन रहते थे। जैसे टूर पे भी बताते थे लोग, मैं भी रहा हूँ, टूर पे भी उनका ये रहता था, जैसे ही समय जैसे शाम हुई, खाना वाना खाया, उसके बाद वो पाठ पे लेट जाते थे। हम सोचते थे कि सो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। उनसे सारी चीज़ें पता चल जाती थी, उनको हर चीज़ का उनको ज्ञान होता था। तो वो जैसे लंच टाइम की आप बात कर रहे हैं, तो लंच टाइम में जैसे अभी ऑफिस में जो होते थे पूसा में, तो हमारे एक R.K. शर्मा जी होते थे, तो वो वहाँ लंच टाइम में चले जाते थे। तो वहाँ भी कुछ लोग आते थे, जो किसी को कोई कष्ट होता था तो वो तो गुरुजी सिर्फ आशीर्वाद देते थे, उसी से वो लोग ठीक हो जाते थे। तो वो जाके सेवा करते थे लंच टाइम में। कई बार ऐसा भी समय मिला कि मतलब जैसे मैं खुद उनको बाईसाइकिल पे लेके गया हूँ वहाँ पे। तो आप उनकी ऑफिस कोलीग से आप उनके डिवोटी कैसे बने? एक बार टूर पे थे हम, 85-86 की बात है। हमारा टूर लगा था लखनऊ के पास, सुरेचा एक जगह थी वहाँ पे। तो वहाँ से हम सीतापुर गए थे मैप वगैरह लेने के लिए। वहाँ तो सब्जी मंडी थी, तो वहाँ हमने सब्जियाँ खरीदी। गुरु जी तो क्योंकि हम
कैंप रहता था तो वहाँ पे पूरा स्टाफ था, पूरा ले आते थे इकट्ठी सब्जियाँ। तो सब्जियाँ ली तो वो पूरा उस टाइम झल्ली बड़ी वो थी, तो बेचारा एक गरीब झल्ली वाला था, तो उसको कहा भी तू ये गाड़ी तक ले चल। तो गुरुजी मेरे से कहने लगे भैया ऐसा कर आनंद तू चला जा साथ में। और तो मैंने कहा भाई कितने पैसे लेगा? बोले जी 2 रुपये, क्योंकि उस टाइम सस्ता ज़माना था तो 2 रुपये बहुत होते थे वो। तो मैंने कहा चलो। तो मैं गया, मैं उसको जाके गाड़ी में सब्जियाँ खाली कराई और मैंने उसको 2 की जगह 5 रुपये निकाल के दे दिए। वो कहने लगा जी मेरे पास खुले नहीं है। मैंने कहा भाई तू रख ले। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने देखा मेरे पीछे गुरुजी का हाथ रखा हुआ। वो दिन मैं भूल नहीं पाता आज तक। वो कहते पुत यही देखने आया था मैं तेरे को। मतलब उन्होंने हम लोगों में काइंडनेस का ऐसा बीज बोया कि हमें किसी से द्वेष करना ही नहीं है। जो जानते थे कि ये गुरु हैं, क्या ऑफिस में भी उनसे कोई मदद मांगते थे? देखिए, मदद जहाँ तक मांगने की बात है, इंसान तो स्वार्थी है, इसको तो ये सर्वविदित है। कुछ भी कोई भी कह दे कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, ये तो निश्चित रूप से है ही। तो जिसको भी तकलीफ होगी, जिसको जहाँ पता चलेगा वो तो वहाँ से जाएगा जी। तो जिसको भी पता चलता था, ऑफिस में भी लोग आते थे, बाहर से किसी को पता चला, बोला वहाँ जो है ऐसे ऐसे हैं, उधर उनके आशीर्वाद से ही आराम हो जाता है। और निश्चित रूप से लोग आते थे, ऑफिस में भी आते थे, तो उनको जैसे ही समय मिलता था तो वो आशीर्वाद दे जाते थे उनको। नीचे एक हमारे यहाँ करजन रोड पे फिर हमारा ऑफिस शिफ्ट हो गया था पूसा से बाद में, तो वहाँ एक गुप्ता जी की दुकान होती थी चाय वाले के नीचे, तो वो वहाँ पे जाके भी आशीर्वाद दे के आ जाते थे, चलो बेटा। इनके ऑफिस में बॉस तो बहुत नाराज हो जाते होंगे कि ऑफिस का काम छोड़ के ये सब कर रहे हैं। नहीं, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऑफिस के काम में गुरुजी ने कभी भी विलंब नहीं आने दिया। सबसे पहले प्राथमिकता वो ऑफिस के कार्य को देते थे। उनका कभी भी कोई भी अधिकारी ने आज तक, जब तक मुझे ध्यान याद है अच्छी तरह से, शायद 90 में रिटायरमेंट लिया था गुरुजी ने वॉलंटरी, कि कोई काम उनका पेंडिंग रहा हो या किसी अधिकारी ने ये कहा हो कि आपका काम पेंडिंग है या आपके से हमें शिकायत है, कभी नेवर, अप टू मार्क काम रहता था उनका। Let's move to Gupta ji, whose tea and juice stall Gurudev frequented. The lies this man had to tell to protect Gurudev's presence and location in the office building probably certifies him as the Prince of Lies. Our answer to Charles, the Prince of Wales, is Gupta ji, the Prince of Tales. यहाँ पे लोग आते थे, मिलते थे उनसे, भीड़ रेस लगा रहता था। यहाँ पे मिलते थे लोग, टी स्टॉल पे आते थे आप? बुरी हाँ वहीं बैठते थे ना, मतलब ऊपर ही मिलते ना ऑफिस में किसी। अच्छा, लोगों को यहाँ मिलते थे। तो वो हर रोज, आपने एक बार ही कहा था वो हर रोज जूस पीते थे आपका? पहले हमारे पास चाय कॉफी काम नहीं था, जूस का काम था। तो मुझे 73 के बाद में पता लगा था कि ये गुरुजी हैं। उनका वर्किंग टाइम क्या था सुबह के? उनका ऑफिस था 9:30 से लेकर 4:30 बजे तक का। 9:30 से 4:30, तो वो 9:30 तक पहुँच जाते थे? 7:30 आते थे गुरु यहाँ पे तो। 7:30? हाँ, 7:30 तक आए थे बिल्कुल। आके कुछ काम हाजी लगाई, निकल गए कहीं, फिर दोबारा आ गए घंटे में, मतलब तो। अच्छा, और निकल जाते 4:30 तक निकल जाते थे? 7:30 निकल जाते उनका कोई यहाँ पे जाए काम नहीं, फील्ड काम था गुरु जी मोस्टली। यहाँ तो एक वो मतलब ऑफिस था उनके जाते। तो गुप्ता जी, अक्सर जो लोग यहाँ पे वेट करते थे, तो आपकी तो बिक्री भी अच्छी होती होगी, लोग खड़े खड़े जूस भी पी लेते होंगे। वो तो 4 यहाँ खड़े हुए हैं, 2 वहाँ खड़े हुए हैं। गुरु जी के गेट से आएंगे, फिर हर गेट पे गाड़ी लगी होती थी, गुरु जी मेरे साथ जाएंगे। वो कहते थे गुरु जी मेरे साथ जाएंगे। मैंने सुना है कि सारे कहते हैं कि गुरुदेव अपनी सैलरी पहले ही दे देते थे लोगों को, बांट देते थे वो। मतलब आपने देखा है उनको बांटते हुए? हाँ देखा। ज्यादा 4th क्लास लोग होते थे, जो कि किसी का लड़की की शादी है मेरे गुरुजी, किसी का कि मेरे वो है गुरुजी का। तो गुरुजी अपने लिए कोई तनख्वाह रखते थे कि नहीं? बाद में फिर हम लोगों ने जोड़ दे गया ना, फिर एक नागपाल जी साथ में थे इनके में, तो उनके ऊपर मतलब गुरुजी साइन करा के ले लेते थे। बाद में एक वो थे खेल बख्शी वगैरह, तो ये लोग अपने तनख्वाह भी ले आते गुरुजी देते थे माता जी। और उनके बारे में कुछ बताइए, उनकी जैसे मतलब जो आपको लगे कि लोगों को बड़ा दिलचस्प लगेगा उसके बारे में सुनना। वो आते थे, हर गेट पे गाड़ी खड़ी होती थी ले जाने के लिए। हाँ। क्या गुरुजी मेरे साथ जाएंगे, आपने कहा मेरे साथ जाएंगे। फिर गुरुजी के शुरू में फिर हेलमेट और आता था ऊपर से चाबी अच्छा स्कूटर की। वो कहते थे गुप्ता से को अपने गुरु को निकाले यहाँ से। फिर मैं स्कूटर गुरुजी को लेना, फिर किक लाना, फिर मेरे पीछे फिर दौड़ना लोगों ने गाड़ी को। तो कहाँ पीछे पीछे गुरुजी स्कूटर पे बैठे, तब उन्होंने पकड़ लेना था गुरुदेव को? नहीं, वो मेरे हाथ आता नहीं था किसी के, वो बैठने ये बड़ा गेट था ना पे, घास निकलता था एक ही गुरु। तो सब गाड़ी वाले मेरे पीछे भागते सारे, अक्सर ज्यादा मोस्टली जो होता था। Decades after Gurudev's passing,
Gupta ji is a regular sevadar at the Nazafgarh Sthan. No more is he the prince of lies. He is a man of great qualities, and though not around physically, Gurudev is still a part of his life. Pratap Singh ji was Gurudev's superior at the workplace, but de facto he was boss to us all. He reveled in the attention we gave him, and our combined efforts kept him quite sorted. A few small favors and a show of respect were enough for him to ignore the fact that we were regular gate crashers at the office camps which came under his jurisdiction. Gurudev would accord him due respect and follow protocol. Sometimes at the camps he would even cook for Pratap Singh ji, and at other times he would oblige him with small favors. For a confused agnostic and disbeliever, Pratap Singh ji has some heavyweight words to say for his junior at work, the being we call Gurudev. He was a very nice boy. Guru ki kripa se he got this Shivji palm mein tha kya tha, and energetic and sober. He has no ego. Or he was a hard worker because he remained in the field for 6 to 9 months in a year in different areas. So I found him as a very energetic and good worker. पिताजी उनका गुरुदेव का काम क्या था? Soil survey river valley project and flood prone area meant to demarcate the area of different type of soils and which erode from the hill area and fulfill the catchment area and reservoir. So he was working as a soil surveyor in different river valley project of India. Northern India, we were having, he was stationed in Delhi. आज आएगा पूरे 8:30 से दफ्तर का 9 बजे तक पहुंच जाएगा. Pratap Singh ji's expectation from Gurudev was efficiency and deliverability, and he was satisfied with both. That made it relatively easy for him to shut his eyes to Gurudev's spiritual endeavors. He continues. वही हंसता रहता था हमेशा. कोई भी किसी को दुख होगा पूछेगा मेरी बीवी पर ठीक हो जाएगी जा, ये दे रही जा. सो उसका ना का तो मामला ही नहीं, ना का कोई मामला था. ऑलवेज पॉजिटिव थिंग. Some of the official camps that Gurudev was a part of became venues for mass healing and also served as an opportunity to meet his future disciples. R.C. Malhotra ji started off as Gurudev's friend, later became his landlord, and thereafter his prime disciple. R.P. Sharma ji, a powerful yet simple man, became his Luca Brasi. Dr. Shankar Narayan showcased humility by accepting a subordinate as a guru and another subordinate, Malhotra ji, as a senior Guru Bhai. F.C. Sharma ji, an icon of humility, was also part of this initial bunch of disciples. He reflects on Gurudev's office life and sense of protocol. Sometimes great content cannot be accompanied by great audio, so do bear with some audio disturbance. बैठ के मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल साधारण लाइफ. जब भी ऑफिस भी जाते थे तो लोग इनके नाम से पुकारते थे. इनको लोग नाम से पुकारते. और अपने सीनियर्स को ये क्या सर वगैरह बुलाते थे? हाँ, अपने सीनियर्स को सर बुलाते थे और बड़ी रिस्पेक्ट दिखाते थे. उन्होंने कभी ये नहीं सुनी शो होने दिया कि मैं जो गुरु हूँ, इनके कमरे में जाना तो मे आई कम इन सर का ऐसा था. जब अपने सीनियर्स के कमरे में जाते थे तो मे आई कम इन सर बोलते थे. The interview continues after a gap of several years. तो जी सबके पास 24 घंटे होते हैं, तो अगर इतने माहिर थे अपने काम में, इतनी फोकस रिक्वायर्ड थी, हर जगह खुद जाते थे, स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको पाठ करने के लिए डेडिकेशन और टाइम चाहिए, तो ये दोनों चीजें कैसे बैलेंस करते थे? ये तो वही जाने कैसे बैलेंस करते थे. करते जरूर थे, क्योंकि जैसे उनको सुबह 8 से 5 बजे तक काम करना है, ऑफिस का काम करना है, और उसके बाद में उन्होंने उनका पाठ का टाइम जो होता था वो रात को ही होता था, 3:15 बजे से 5:15 बजे तक. वो उन्होंने ज़रूर करना होता था, पाठ ज़रूर करते थे अपना. तो इसलिए बैलेंस, बिकॉज
स्पिरिचुअल में जो आप भी पाठ करते हैं तो इससे शक्ति ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा जो है वो उसी से आदमी चलता है। पाठ में इतनी शक्ति होती है कि आप आधा घंटा भी सो लिए तो आपके 8 घंटे पूरे हो गए उसमें। Another office colleague, Jain Saab, eavesdropped his way to spirituality. Gurudev was in the process of training his first disciple, Malhotra ji, and would give him instructions on a daily basis. A debrief would happen every evening. Jain Saab would sit and eavesdrop. That showed his enthusiasm for the subject. It also led to making him one of Gurudev's most powerful disciples. Let's hear this interesting story in F.C. Sharma ji's words. तो मल्होत्रा जी और जैन साहब और गुरुदेव काफी इकट्ठे रहते थे, और ये गुरुदेव मल्होत्रा जी के साथ ज्यादा टाइम बिताते थे और जैन साहब को कभी कभी दूर बैठाते थे। तो बातें आपस में करते, हाँ, कोई पर्सनल बातें होती थी। हाँ, तो वो बाद में हमें पता लगा कि गुरु जी जो मल्होत्रा जी को दिन में बताते थे आज रात को आपने ऐसा ऐसा करना है, गुरुदेव मल्होत्रा जी को बताते थे कि आज रात को आपने ऐसा बैठेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, हाँ, जो करना है। हाँ, वो सुबह आके गुरु को रिपोर्ट करते थे, और फिर रिपोर्ट करते थे तो पूछते थे कि क्या हुआ रात को, तो वो मैं नहीं जानता क्या करता था, तो वो रिपोर्ट करना। यहाँ तक बाद में पता चला कि गुरु जी उनको ट्रेनिंग के साथ साथ में देवताओं को जो देवता है उनको मंत्र देते थे और उनसे उनकी मुलाकात कराते थे। Though unclear, that was a heavyweight statement. He said that Gurudev would train Malhotra ji in mantras and make him meet and communicate with those Devi Devtas. Coming up next is one of the few audio recordings of Malhotra ji that exist. He was probably the first in line of several and therefore special to Gurudev. Had a pretty good sense of humor, and in Gurudev's world, he was more than just an institution. सुना था कि आप बहुत नोटी शिष्य थे, ऐसा सही है? नोटी मतलब आप थोड़े से मजाकिया थे, टिंगलबाजी करते थे, बड़े जैन साहब की खूब टहन खींचते थे, उनको डराते थे। ये मतलब अध्यात्म में अंदर में आता है? वो डरता ही ना, जब थोड़ी गलती करता था ना तब समझाता था। Another significant co-worker was the late Datta Babu. Gurudev made sure that Datta Babu was transferred to Calcutta so that he could manage a sthan or a center of help and healing there. R.K. Sharma ji's house, which was a cycle ride away from office, became the venue where Gurudev would serve people during office breaks. Back to Anand. ऑफिस में तो हमने कभी उनको खाना खाते ही नहीं देखा। हमने देखा ही नहीं ना कभी कि इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह का कोई, असल में तो समय ही नहीं मिलता था। मैं आपको सच्चाई बता दूं, क्योंकि लंच में भी जो है लोग नीचे वेट कर रहे हैं, गुरुजी नीचे 10 आदमी खड़े हैं, गुरुजी चलना जरा। तो अब देखिए, जिसके पास आशा लेके कोई आदमी आया है तो बट नेचुरल है कि वो तो उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि प्रकृति ने उनको दिया था जो कुछ, तो प्रकृति का आदेश तो उनके लिए था, तो वो उसको कभी डिनाई नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी तरफ से पूरा सहयोग किया। The little salary Gurudev earned got even littler on payday. Dwarkanath ji laments. पैसे की, मनी की बिल्कुल लगाव नहीं था, बिल्कुल लगाव नहीं था। सैलरी ली, नागपाल भी लेता था, वो भी लेते थे, और नागपाल तो पूरी सैलरी ले आता था घर, और वो आते थे तो खाली आते थे। क्लास 4 और सर्कल के लोग चाय, जहाँ स्टॉल से चाय पीते थे, उनको बोलते थे कितने पैसे, वो अगर उसने बताया भाई 30 रुपये हैं, चल 50 रुपये रख ले, बाकी हिसाब करता रहिए। किसी ड्राइवर है, उनके ड्राइवर होते थे ज़्यादा, खलासी ड्राइवर, वो मांग लेते थे पैसे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो जब शाम को घर आए तो बिल्कुल खाली होते थे, बिल्कुल खाली। मैंने कहा यार, इसको भी तनख्वाह मिली है और आपको भी मिली है, तो आप कहते हैं यार मैं क्या करूं, मेरे से मांगते हैं लोग, मैं दे देता हूं। Gurudev had no greed for or attachment to money. At home, he was not thrifty with his wife's salary.
and at office, generous with his own. Arithmetically, their combined salaries weren't enough to meet the basic needs of raising a family and the expenses of running a sthan. To top this, the money from his salary was often distributed in part to the junior employees who requested him for monetary help. And yet somehow, the two ends met, even if just about. The secret was barakat, the relationship with money which makes your buck last longer. Gurudev's wife was a pillar of strength. She endured a lot of hardships on account of Gurudev's generosity, but she handled the situation with poise and amusement. She was the caretaker of the back-end SEVA that was constantly happening in their home. A school teacher by profession, she worked for the better part of the day and spent the remainder tending to her family and managing the langar or the community kitchen. For her, it was a long 18-hour day, but for him it was probably longer. She shares a few interesting tidbits about his office life. ये ऑफिस में बताते थे कि ऑफिस में दोपहर के टाइम में मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलने लगी जो कि इनकी बातें पूरी होने लगी। फिर ये लोग मेरे आसपास घूमने लगे, आसपास ऑफिस वाले जो कलीग होते थे कि ये इस टाइम में ये बात बोलते हैं तो वो पूरी हो जाती है, उस टाइम में हम भी कहेंगे। फिर जो अपने आप को छुपाते रहे कि अभी मैं बाहर शो नहीं करना चाहता, कुछ भी ना हो, किसको ना पता लगे। वहाँ से फिर इनका धीरे बातें निकलते निकलते फिर यहाँ से फिर ये फैलने लगा। इन्होंने फिर उसके बाद ही उसी टाइम के अंदर ये मल्होत्रा इसके साथ आया। उसके बाद इन्हें इसमें मंत्र लेने शुरू किए। Dr. Shankar Narayan was chef Fala Gurgaon and in charge of the community kitchen during major functions. Blessed is the Lord that he did not burn his free-flowing lungi when he was near the fire. Of course, he did not know how to cook, but he knew the lungi dance long before it became a rage in Bollywood. How did you know Gurudev? In fact, I did not know about him for 5 years when I entered to Delhi office. You were in the same office? No, he was in the parallel office and Malhotra ji was in my office. But Malhotra ji never told me about Guruji or anything before that. I never knew about him, and only after Mr. Datta, my Guruji department person, and his father was very badly ill, and all the medical this thing could not actually help him. And then actually somebody told about Guruji, and then Datta knew about it, and Guruji actually saved him. That story, Datta, and one of my colleagues told me after I came back from Iraq on a tour. Then I asked Datta, I want to see him. He said, I know you are interested in this. Guruji also had told him, no, I know he will come to me. There is a date and I am waiting for that, and actually it is going to sometime. That's how I actually, through Mr. Datta, I am so grateful to Datta. He made me to become actually Guruji's Shishya. And Guruji one day entered my office room himself. So then I actually left my chair and actually sat within 2 minutes. He said, no, we will go to the house, my house. Right. So when we were sitting, then he asked me, what do you want from me? Correct. I told him, you are Shubhak and I am follower of Ganpati. Then he told me it does not matter. And then he had tea and he actually talked to all my wife and my children also. Right. And then he left. And after that, next day, he brought me and a slip and he gave Ganpati a job. Right. That's how we started. And then he gave me the second Ganpati job and he told, this one you will not give to anybody. I want to ask you, did you have any other reasons to meeting him? Yes, that I tell you. Every day I had to go to the doctor and bring medicine for one or the other, especially my youngest daughter, who is now in USA, Vaishali. Vaishali.
Then after that, you see, we stopped actually going to any doctor. Right. Regarding his office, Dr. Shankar Narayan, I want to ask you, considering he had so many people who used to come and meet him, even I have gone and stood outside his office, Yes, yes. and there were so many gates. Yes, yes. How did his bosses react to his activities? Actually, his bosses were also used to go to him for their relief. Because the wonderful thing I can tell you is, they used to come and actually touch Guruji's feet. But Guruji, whenever he used to go to their rooms, he used to stand in before the table, and actually he used to be like a government servant. Right. That is the quality of Guruji. You are saying that he followed protocol. In the office, he was really as a government servant should be. Dr. Shankar Narayan, did his office people accept the fact that so many people used to come to meet him, stand outside the office? Didn't it make people envious and jealous of him? Of course, because I will tell you one example. Guruji was taking me to some place. One of his colleagues met him, and he was jokingly told, "Oh, abhi aap Guruji ban gaye." Guruji. So then, of course, he just smiled. That's all. And we just. But the office, so many. But most of the people, they used to actually become shishyas. In those days, they say they used to ask Guruji to bring for them cigarettes from the shop. Before colleagues. Before they found out that he is Guru. Yes, yes. He used to go and bring cigarette and give to him. He used to actually do all those things. Not only did Gurudev buy cigarettes for his colleagues, but they often took advantage of his generosity by drinking cups of tea at Gupta ji's stall and adding the expense to Gurudev's account. But being exploited never caused Gurudev any awkwardness. I got this hand-me-down quote from Bittuji about what Gurudev had said to him on the subject. He had said, "वो कल भी पीते थे, हम कल भी पिलाते थे। वो आज भी पीते हैं, हम आज भी पिलाते हैं। वो कल भी पिएंगे, हम कल भी पिलाएंगे." For him, generosity was not a sacrifice. It was a purpose. What made the office folk look at him in awe was the case of Sushila Chaudhary, an elegant woman whose agnostic husband eventually became a significant player in the game of SEVA. His tall physique, bellowing voice, and central girth lent him a distinguished demeanor. After his demise, the Sthan at Patel Nagar ran in absentia for decades. He served people who visited it in the spirit form. Let's hear her story. मैं उनको पिछले 35 साल से जानती हूँ। जी जी। मैं उन्हीं के ऑफिस में उन्हीं के साथ ही काम करती थी। अच्छा। और मुझे जब उनका पता लगा, उससे पहले मेरी एक डॉटर थी ना, रितु। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया था कि आपका नेक्स्ट इशू नहीं होगा। After my treatment for the last 4 years, doctor said no, you will not conceive. Okay? तो मैं गुरुजी के पास जैसे ही गई, तो गुरुजी को मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार की, तो गुरुजी ने कहा, हाँ पुत्र किस तरह आए हो? मैंने कहा कि मेरे को डॉक्टरों ने इस तरह से बोला है, मेरा 4 साल ट्रीटमेंट चला है, मेरे ऑपरेशन भी हो चुके, टेस्ट भी सारे हुए हैं, सब हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर ने मना कर दिया कि हो ही नहीं सकता, जबकि एक ट्यूब ठीक है, एक खराब है। तो गुरुदेव ने कहा डॉक्टरों को छोड़, वो तो पागल है, तो 3 बेटे होने हैं। अच्छा जी। हाँ, ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो मेरी आंखों में जैसे खुशी के आंसू थे। मैंने कहा अच्छा जी। तो कहने के कुछ ऐसा करो, इलायची 21 ले आओ। एक तब गुरुजी स्टील का कड़ा डालते थे, बेटा मालिक ने चाहा तो अगले साल तक हमारे घर में बच्चा खेलेगा, और होने भी 3 लड़के ही हैं। उसके अगले कहिए कि 1.25 साल के बाद मेरा ये बड़ा बेटा पुनीत, आप जानते ही हैं। जी जी। हाँ जी, वो हुआ। उसके नेक्स्ट 1.5 साल के बाद नेक्स्ट बेटा हुआ। अल्टीमेटली नेक्स्ट गुरुजी फिर कहने लगे
कि अब अगले की तैयारी। मैंने कहा नहीं गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, 2 हाथ दिए। मैंने 1 मांगा, आपने 2 दिए। अब आपने मुझे जितना खुश किया है ऐसे औरों को भी खुश करो, औरों को भी आप दो। तो गुरुजी कहते हैं जो तेरे हिस्से का है तुझे देना है। मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस किसी और को। जब जाती गुरुजी बोलते और मैं उनको यही जवाब देती। अल्टीमेटली एक दिन उन्होंने कह दिया कि तू रोज रोती थी, आज मैंने वो जो है कहीं और जन्म करा दिया है। उन्होंने मुझे बताया भी मैंने कहाँ जन्म कराया है। अच्छा, ये जो तीसरा जन्म कराया है, हाँ जी, आप इसको देखती हैं? आपको मालूम है कौन है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन है। वो कहीं बड़ी ऊंची बड़े करोड़पति घरों में है। अच्छा। हालांकि वो कहते हैं कि वो आत्मा जो है बड़ी पवित्र आत्मा है, वो तुम्हारे घर में ही जन्म लेना चाहती है, जहाँ भक्ति पाठ पूजा ये सब। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने कहीं और जन्म कराया। उसके बाद मेरे को थोड़ी परेशानी होती थी, कभी कभी होती थी। तो कहते हैं बेटा अगर वो तू होने देती ना तो सब ठीक हो जाता। वो आत्मा तुम्हारे घर में ही जन्म लेने चाहती थी और वो बड़ी पवित्र आत्मा थी। वो भी उन्होंने बताया, वो आत्मा मेरे फादर की आत्मा थी। मेरे फादर बहुत पाठ पूजा भक्ति बहुत करते थे और मेरी अटैचमेंट भी उनसे बहुत ज्यादा थी। What is out of the ordinary in the late Sushila ji's story is that her office associate brushed aside all medical analysis and evaluation and promised her 3 sons, delivered 2, and at her instance hived off the 3rd to another mother. As if that was not uncanny enough, he even knew the identity of the not-to-be-born 3rd. Only supernatural divinity in human form could know this. The focus on miracles can often make a character too distant to be believable. By now, you, the listener, should be convinced that the universe connived to curate his life and circumstances. The puzzle seemed to fit in place like a script awaiting enactment. Look at how, thanks to a cow, he got admission in Pusa, the agricultural university. How the wrong Nagpal got the job to do the right things. How he developed the attitudes required for the deity that he was to become. How the disciples who joined the same department as him weren't there by coincidence. In fact, his workplace gave him opportunities to meet people, find and rein in disciples, travel across half the country, extend the reach of SEVA, fruitify the tapasya of many devotees past and present, and give salvation to human beings, animals, and spirits. They were a part of his destiny, like he was theirs. Could even the best scriptwriter have conceived a script like this? More than creativity and imagination, it would take knowing. The only person who did foretell his script was the one who could see the future, Rishi Bhrigu of the Samhita fame. Gurudev's life was one of amazement. So let's be amazed. आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे।